of Vedic mathematics in solving simple equations. बेसिकली देखो, जो रूल हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं वैदिक मैथ्स का, उस रूल का देखो नाम ऐसे है। आप चाहो तो इन्वर्टेड कोट्स में नेम को लिख सकते हो कि किस नेम को हम लोग यूज करने वाले हैं। परावर्त्य, दैट इज लाइक दिस, परावर्त्य। योजायत, एक्चुअली इसका पूरा नाम ये है, परावर्त्य योजायत। बेसिकली इसका मतलब होता है ट्रांसपोज एंड एडजस्ट। बेसिकली इसका मतलब होता है ट्रांसपोज एंड एडजस्ट। लेकिन आपको भी उन टर्म्स पर नहीं जाना है, आपको क्या सीखना है कि लाइक सर ने आज ये जो रूल क्लास में सिखाया था, इस रूल का यूज सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करने में कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो एक चीज, पहला कॉन्सेप्ट लिखना, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, और इसमें लिखना इफ px plus q, if px plus q is equals to rx plus s, अगर ऐसा कोई भी इक्वेशन कभी आपको एग्जाम में अगर दिया जाता है, then x is equals to s minus q divided by p minus r, or you can also write q minus s divided by r minus p. अब देखो इस कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो एक सम दिया हुआ है 2x plus 7, 2x plus 7 is equals to x plus 9. अब यहां पर देखो, केयरफुली देखो, it will become p and it will become q. Now in place of this there's no value, so I'm assuming it will be 1. So 1 will become r and this will be 9 will become s, and easily I can use this concept, any one of them, either this or this, and I can simply say x is equals to s minus q, that is 9 minus 7 divided by p minus r, that is 2 minus 1, and hence answer will be 2 by 1, that is 2 answer. Understood this method? Yes. But remember, this method is not applicable in your exams. For examination purpose, we can check the answer using this method easily. Like whenever they will give us the question, we can check the method easily. And hope you understood the concept, why they have used this shortcut. It is very easy to explain this part. It's very easy to explain this part. Just see this part. If I say you that I'll transfer q to this side and I'll transfer rx to this side, what will happen? It will look like px minus rx equals to s minus q. And as you see that if I take x common, it will be p minus r equals to s minus q. And because of this, they have made the formula x equals to s minus q divided by p minus r straight away. Understood? Yes. So is this first variety is clear to you all? Yes. Yes. Now, if I'll give you some problem, you will be able to solve that part? Yes. Okay. Just try to solve this one question first. If 9x plus 9 is equals to 7x plus 7, find x. And try to use this method. Don't use it normally. Try to solve using this method so that it will be in your habits.
Done. डन? Sir, आंसर कितना है? बोलो, व्हाट शुड बी द आंसर? -2, -1. -1. Very good. Answer should be -1. Clear? Now just see this next example. If I tell you the next example, that is example number 2. 3x plus 4 is equals to 7x minus 5. Find x. Now again use the same concept. Done. Done? What should be Yes. the answer? -4. Bolo Prabhuti, what should be the answer? 1/4. Arya? 1/4. देखो, समझना इस पॉइंट ऑफ व्यू को एक बार. इसमें अगर मैं आपसे बोलूं, देखो ये P का वैल्यू है, ये आपका R का वैल्यू है, ये सॉरी Q का वैल्यू है, ये आपका R का वैल्यू है, और देखो S का वैल्यू यार -5 होगा ना. जो आप लोग देखो गलती करो सब लोग. गॉट इट? So be careful while using the formula. 9/4. ठीक है? Sir, it is 9/4, right? हाँ, यस. It would be -4, right? 9/-4. नहीं बेटा, 9/4. Because 3 - 7 would be -4, right? देखो जरा, देखो मैं बता रहा हूं. देखो सबसे पहले आप ऊपर में देखो क्या लिखते हो. आप देखो चेक करो, देखो फॉर्मूले को आप ऊपर में देखो लिखते हो ना, S minus Q. तो देखो whenever you're writing S minus Q, तो S will be -5 minus Q will be 4 डिवाइड बाय, और नीचे आप लिखते हो देखो क्या, आप नीचे में देखो क्या लिखते हो, P minus R. देखा? तो P minus R if you will do, तो it will be 3 minus 7, so it will be -9 and it will be -4, so minus minus gets cancelled and hence answer should be 9/4. Okay. Now understood? और ये देखो मैंने अभी सबसे इजी वैरायटी सिखाया था, अब हम लोग इसी को टफ वैरायटीज में कन्वर्ट करते हो जाएंगे, देखो आगे धीरे धीरे करके. ठीक है? तो तब तुमको इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि वैदिक मैथ्स का क्या इंपॉर्टेंस है. ये तो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सर ये तो मैं नॉर्मली भी वर्कआउट करता, मैं इधर उधर ट्रांसफर करके आंसर सेम आता है मेरा. ठीक है? अब देखो जरा, लिखना वैरायटी नंबर 2, दैट सेकंड केस. इसमें ऐसे याद रखना, अगर कोई भी इक्वेशन सपोज इस फॉर्मेट में है, x प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू x प्लस आर और इंटू एक्स प्लस एस. अगर कोई भी एग्जाम में अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन अगर नजर आता है, तब देखो समझना दो चीजें यहां पर पॉसिबिलिटी होंगी.
पहला पॉसिबिलिटी आपको ये चेक करना है, आपको ये देखना है कि इफ P इंटू क्यू जो भी आपका है, अगर वो R इंटू एस के बराबर है, अगर आपका P इंटू क्यू जो है अगर R इंटू एस के बराबर है, देन योर आंसर विल बी बाय डिफॉल्ट X विल बी 0 हमेशा। X हमेशा कितना बनेगा? 0। लेकिन देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी P इंटू क्यू का जो आंसर है वो R इंटू एस के बराबर नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू है। अगर वो नॉट इक्वल टू है तो उस केस में आपका X का आंसर बनेगा X इज इक्वल्स टू आर एस माइनस पी क्यू, आर एस माइनस पी क्यू डिवाइड बाई पी प्लस क्यू माइनस आर माइनस एस। एक बार इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लो, इसको दोनों को अलग अलग। ये सर ने क्या लिखा है? अगर ये ऐसा है तो आंसर ये होगा, अगर ऐसा है तो आंसर ये होगा। और फिर सीखेंगे इसका एग्जाम्पल। Done. डन। अभी देखो इसका एग्जाम्पल एक बार नोट डाउन करना जरा। एग्जाम्पल नंबर 1, यहां पर मैंने दिया आपको x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 21। फाइंड x, फाइंड x। Sir, that is x plus 21. x plus 21, yes. x plus 9 into x plus 7 into x plus 9 is equals to x plus 3 into x plus 21। आप देखो ट्राई करो इसको। Done. बोलो क्या आंसर होगा? 0. वेरी गुड। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, तो देखो P का वैल्यू देखो P इंटू क्यू करने से 63 हो रहा है, देखो 7 9 जा 63, और R इंटू एस भी देखो कितना हो रहा है 321 जा 63। सो सिंस दे आर इक्वल, आंसर विल बी व्हाट? X विल बी 0 विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग एल्स। अभी इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है अपना क्लास का भी? Yes. Yes, sir. क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो उसको पूरा ब्रैकेट ओपन करते थे, फिर उसको काटा पीटी करते थे, फिर जाके सॉल्व करते थे, फिर एक विल गॉट द फाइनल आंसर। लेकिन ऐसा इस समय क्लास में आपको नहीं करने का जरूरत है, ठीक है? तो अगर ऐसा मैं कुछ और दूंगा तो ट्राई कर पाओगे एक बार? चलो लिखो नेक्स्ट एग्जांपल। चलो बनाओ।
x plus 2 into x plus 7 is equals to x plus 4 into x plus 5. ट्राई करो. Done, sir. गुड. बोलो क्या आंसर आएगा. 0. नहीं, देखो समझना एक बार. देखो ऊपर में यह 6 बचेगा और नीचे 0 बचेगा ना. Yes. आंसर विल बी इन्फिनिटी. इसको बोलते हैं अनडिफाइंड. इसको मैथ्स में क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी मींस अनडिफाइंड. लाइक हमेशा याद रखना, समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड. समथिंग अपॉन 0 विल बी ऑलवेज अनडिफाइंड. क्लियर? तो अभी इसको करो, फिर हम लोग इसी का करेंगे एक और एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 3. स्टार्ट करें. चलो देखो, एक नेक्स्ट एग्जांपल लिखना है एक बार. x plus 11 into x plus 12 is equals to x plus 9 into x plus 20. चलो इसमें बताओ. देखो ये आंसर आएगा कि नहीं, चेक करो. Yes, sir, I got. Yes. ठीक है. नाउ इज दिस मेथड इज क्लियर टू यू ऑल? Yes. Yes. अच्छा देखो, इसका मतलब अगर आप चेक करो, देखो एक केयरफुली एक चीज देखना. ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला सिचुएशन था जो सेकंड नंबर हम लोग सॉल्व किए थे. तो वी कैन सिंपली सी दिस वे. अगर आपका, देखो चीज को समझना, पी क्यू इज नॉट इक्वल टू आर एस है. अगर पी क्यू इज नॉट इक्वल टू आर एस है, और अगर पी प्लस क्यू जो है अगर वो आर प्लस एस के बराबर है, देन योर आंसर विल बी ऑलवेज एक्स विल बी इंफिनिटी. क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? Yes. एक बार नोट डाउन कर लो इस चीज को.
क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी? अभी तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि सर कब जीरो आएगा, कब इन्फिनिटी आएगा और कब वैल्यूज आएगा? Yes. चलो अभी लिखेंगे आज का वैरायटी नंबर। देखो कौन सा आएगा, 3 आएगा कि 4 आएगा आज का? जो भी नंबर ऑफ वैरायटी रहेगा, नेक्स्ट वैरायटी का बात कर रहे हैं। देखो इफ px plus q divided by rx plus s is equals to t divided by u is equals to t divided by u। क्लियर? अगर ऐसा फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट होता है तो देखो x का आंसर सर कैसे निकाल रहे हैं? x विल बी सिंपली आप कर दोगे t इंटू एस माइनस u इंटू क्यू डिवाइडेड बाई u इंटू p माइनस t इंटू r। एक बार में आपका आंसर डिलीवर होगा। और देखो अगर ध्यान से देखो मैंने कैसे लिखा है, आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? देखो u से मैंने मल्टीप्लाई जो किया था पहले आपका, देखो यहाँ पर u और p है ना, देखो इसलिए यूपी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूपी लिखा हुआ है। ठीक, ये t इंटू आर, देखो यहाँ पे टी आर लिखा हुआ है। और जब यहाँ ऊपर में हम देखें तो टी एस दिख रहा है और यू क्यू दिख रहा है। ठीक है, इसी को बाद में आप देखते हो जब क्लास 11-12 वगैरह में जाओगे, आप एक चैप्टर आएगा आपका डिटर्मिनेंट्स बोलकर। क्या चैप्टर आएगा? डिटर्मिनेंट्स। और उसमें आप इसी चीज को पढ़ोगे, क्रैमर्स रूल बोलकर। डिटर्मिनेंट्स बोल के एक चैप्टर आपके सिलेबस में बाद में आएगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसी में आप इसको पढ़ोगे क्रैमर्स रूल बोलकर। ठीक है, लेकिन अपने वैदिक मैथ्स में डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते हो। तो अगर ऐसा मैं कुछ देता हूं, ट्राई कर पाओगे एक बार? चलो देखो इसको लिखो, और ये साइन का ध्यान रखना कि x के साथ जो नंबर है पॉजिटिव के नेगेटिव है विद साइन बोलना है। जैसे अगर मान लो -2x है तो आप p का वैल्यू -2 बोलोगे। क्लियर? जो मिस्टेक आपने पहले शुरुआत में किया था, मिस्टेक दोबारा आप लोग नहीं करोगे अब। तो एक बार लिखना 5 - 6x डिवाइडेड बाई 3x - 1 इज इक्वल्स टू 1/2। फाइंड x। आंसर आने से बताना मुझे। Eleven upon 7. 11/7. देखो बेटा चेक करो कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं है।
देखो वैल्यूज ऐसे ही है ना आपका, Yes. Q का वैल्यू आपका कितना है 5 और P का वैल्यू आपका कितना है -6। देखो मैंने कहीं पुट करने में गलती किया है क्या कुछ? देखो एक बार मैं पहले अरेंज कर लेता हूं इसको। P का वैल्यू कितना होगा -6, Q का वैल्यू कितना होगा 5। Sir, P is 5, right? Sir, P is 5 and Q is minus. No, dear, because 5 minus 6x, we can write -6x plus 5 now. We have to write down in this way, px plus q format. Understood? So p will be what? -6 and q will be 5. Understood? And simply r will be what? 3 and s will be -1. And now I'll use the formula ts minus uq, ts. So ts, t will be what? 1 and u will be what? 2. So first I'll write ts minus uq. So ts will be 1 into -1 minus uq. So it will be 2 into 5. I have written this part mistaken. It will be 2 into 5, na, uq. And then up. So up will be 2 into -6 and minus tr. Tr will be 1 into 3. So finally it will be -1 -10 divided by minus, this will be 2 into how much? It was -12 -3. So finally it will be -11 divided by, देखो वैल्यूज कहीं पुट करने में बड़ा गलती तो नहीं रहा, यूपी इंटू टी आर ना, टीएस यूक्यू यूपी। देखो यूपी मैंने कितना लिखा है 2 इंटू -6, ठीक है, और माइनस टी आर, टी विल बी 1, आर विल बी 3। ठीक है, तो आंसर विल बी -15. So it will be 11 divided by 15 because minus gets cancelled. तो अभी ये सेशन समझ में आया वाला पार्ट, अभी जो हम लोग आज 2 से 3 वैरायटीज जो कवर किए हैं। अगर ऐसा कोई भी सम पूछूंगा तो बता पाओगे आप लोग? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा तीनों तक? हेलो, अचानक से हैंग किया था कंप्यूटर मेरा। आवाज आ रहा है आप तीनों तक अभी? Yes, sir. तो जो भी तीनों मेथड्स हमने अभी किए थे वो तीनों मेथड्स अब अच्छे से क्लियर है एक बार? Yes. ऐसा अगर मैं कुछ भी पूछूंगा तो एक बार ट्राई कर पाओगे? Okay. चलो अब चूज आपको खुद से करना है कि किस मेथड का सवाल है, ठीक है ना। अब सर आपको हिंट नहीं देंगे, ये सर अब 3 जो केसेस आपको सिखाए वो आपको सेलेक्ट करना है कि सर ने कौन सा केस आपको दिया है तो आंसर कितना होगा। लिखो फर्स्ट एग्जांपल अभी जो आप बना के दिखाओगे मुझे। लिखो x plus 13 into x plus 7 is equals to x plus 16 into x plus 4। ट्राई करो।
सर 0 कितना? 0 सोच लो एक बार। Done. बोलो कितना आंसर? 26. प्रभुति आप बताओ। Sir, I'm doing. Sir, infinite. Yes, very good. Only Prabhuti is correct. Infinite. क्योंकि first of all, if you will see, this is 13 into 7 will be 91 and 16 into 4 will be 64. These two are not equal to each other. Now again, 13 plus 7 will be 20 and the 16 plus 4 will be 20. These are equal. So the answer will be infinity. Got it? और अभी पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं एकदम? चलो अभी एक बार ये वाला बना के दिखाओ, वन मोर, और ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 4x plus 3 divided by 3x plus 4 equals to 5 divided by 9. Find x. ट्राई करो। कहाँ की? आंसर आया इसका, देखो। Yes, sir. कितना आया बताओ आंसर? -1/3. लेट अस सी दिस वन। देखो इस केस में अगर मैं पहले देखूं तो अपना फॉर्मेट देखो क्या था, पी एक्स प्लस क्यू था ना, तो इट विल बी पी, इट विल बी क्यू, और नीचे में अपना था देखो आर एक्स प्लस एस, तो इट विल बी आर और इट विल बी एस, और इक्वल्स टू द टी डिवाइड बाय यू, तो इट विल बी टी एंड इट विल बी यू। गॉट इट? अब फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखो पुट करोगे तो x विल बी व्हाट, x इज इक्वल्स टू, आपका कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो पहले क्या था, इट वाज ts, सो ts विल बी हाउ मच, 5 4s are 20 minus, it was 20 uq, minus uq will be 9 into 3 will be 27 divided 27. by up, 9 4s are 36 minus tr, 5 3s are 15, so it will be
-7 divided by 21. So answer will be -1/3 answer. Clear? तो अभी ये आज वाला पार्ट समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. गुड। तो हम लोग नेक्स्ट डे जो क्लास करेंगे, नेक्स्ट डे आई थिंक मैंने आपको डेट बताया होगा, उस अकॉर्डिंगली विल डू हैव द क्लास। ठीक है?